Welcome to the Future of Pharmacy, your go-to podcast for the latest advancements, challenges, and insights in the world of pharmaceuticals. I'm your host, Supradeep Mukherjee, and we have a very special guest with us today, Professor Narendra Ahuja. He was the chief guest at the international conference that we are having for the next 2 days, 3rd and 4th of April, at Lingyas Vidyapeeth on pharmaceuticals, on agriculture, and on basic science. Professor Ahuja, let me talk a little bit about his profile. It is such a lengthy profile that I can spend the better part of the podcast talking about it. He was the former member of the Sahitya Academy in Haryana. He was the former state drugs controller, Food and Drugs Administration, Haryana. He was the former professor of practice at MBN University, Palwal, and director of corporate affairs. He has done a B Pharmacy from the Birla Institute of Technology, Mesra Ranchi, an LLB from Punjab University, Chandigarh, PG DRA from Jamia Hamdard University, Delhi, LLM from MVN University, Palwal. Welcome to the show, sir. Thank you very much for giving me a chance at Lingyas University. And as already you have told the audience that I was here as a chief guest in the international conference of pharmacy itself. Recent advancements in the field of pharmacy. Correct. That was the basic topic of the international conference. Yes. Thank you. What was your experience at the conference? That conference and the topic taken by the Lingyas University is the fantastic one. Really? Because we always have to, where we are moving ahead. Correct. Where presently we are and where we want to go to. Correct. The desired state. And then last thing, which will be the outcome of the international conference, where I am today, where I have to reach, and now in the international conference with the help of eminent speakers, we have to tell the students and the participants the pathway from where we are to reach where we want to go. Wonderful. मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? फार्मासिस्ट होने के बाद मैं करना क्या चाहता हूँ? समाज में आज फार्मेसी के स्टूडेंट के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? क्या वो अपॉर्चुनिटीज सस्टेनेबल हैं? अगर मैं पुराना ही चिपका रहूंगा कहीं पर, तो I think I will not be able to reach to my goal. Very correct. If I want to go on the rooftop of any building, then I have to move ahead step by step. Absolutely, step by step. No one can jump from the ground to the first level or from first level to the second level. Correct, sir. Everyone has to move step forward, stair by stair, and then reach up to the goal. That should be the outcome of the international conference. Correct. Topic is very fantastic. Recent advancement, innovation, and with their sustainability. हम जो चाहते हैं करना, क्या वो सस्टेनेबल भी है? सही बात है। क्या वो यूजफुल भी रहेंगे? क्या उन रिसेंट एडवांसमेंट से मैं सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व भी कर पाऊंगा? सोसाइटी को आगे आने वाले समय में किस प्रकार की दवाएं चाहिए? आज मैं कहाँ हूँ और कल मुझे कहाँ होना है, और उस बीच का रास्ता जिस पर चलना है, that is the basic concept of the international conference. That is fantastic. इंटरेस्टिंग सर, क्योंकि अगर आप देखें तो बीमारियां भी बढ़ रही हैं और दवाइयां भी बढ़ रही हैं, तो आप इसको कैसे समझते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, अब बीमारियां बढ़ रही हैं तो दवाइयां भी बढ़ रही हैं। जी। मैं एक छोटा सा उदाहरण लेकर के आपको बताता हूँ। कोरोना आया, जी, एक वैश्विक महामारी। करेक्ट। बाद में एक एलिगेशन भी लगा, नॉट कंफर्मिंग दैट एलिगेशन, कि हमारे एक पड़ोसी ने कोरोना वायरस लीक हुआ और वहां से पूरी दुनिया को उसने अपने चपेट में ले लिया। Anyhow, these are the allegations, proven one, but people who are speaking in support to that allegation, they have certain proofs and leads for that. I'm not confirming those. Correct. But हमने क्या दिया? मेरा कंट्रीब्यूशन क्या था? Correct. जंगल में आग लगी, चिड़िया चोंच भर के पानी ले गई, उसने पेड़ पर डाला जलते हुए, कुछ बुझाने की कोशिश की, तो चिड़िया का नाम आग को बुझाने वालों में रखा गया। वेरी गुड। मेरे देश ने उस समय कोरोना की 2 वैक्सीन, एक मेक इन इंडिया, एक मेड इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड को दी। एब्सोल्युटली। दूसरा,
अगर मेरा देश कोरोना की उन वैक्सीन का इनोवेशन ना करता, करेक्ट, तो क्या हम पूरी दुनिया की तीसरी दुनिया की, खास तौर पर जिसे हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहते हैं, जो पुअर कंट्रीज हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं, अगर हम उनको कोरोना की वैक्सीन डिप्लोमेसी में ना देते, करेक्ट, तो क्या वो अपने देशों की आबादी को इस वैश्विक महामारी से बचा पाते? Very true. आंसर इज नो, नॉट एट ऑल. Very true. अब एक बात और आती है कि हम ये वैक्सीन बना पाए. करेक्ट. कैसे बना पाए? क्योंकि इसके लिए रेगुलेटरी पाथवे अवेलेबल था. Very true. अगर न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019 में ना आए होते, करेक्ट, रेगुलेटरी पाथवे ही ना होता, तो ये वैक्सीन कैसे बनती, कैसे अप्रूव होती? वो रेगुलेशंस ही नहीं होती. रेगुलेशंस नहीं होती तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते कि आपके देश का साइंटिस्ट या आपके देश की फार्मा कंपनियां, आपके देश का वैक्सीन मैन्युफैक्चरर वैक्सीन को बना पाएगा? आज तक तो कोई वैक्सीन बनी नहीं थी सर. करेक्ट. तो हम बना पाए क्योंकि रेगुलेटरी पाथवे अवेलेबल था. मैं आज ये कहता हूँ उस समय एक चुनौती को मेरे देश ने स्वीकार किया. जी सर. और टाइमलाइंस के अंदर हमने ये डेवलपमेंट की, इनोवेशन की. करेक्ट. ठीक है. आज हम कई वर्षों से फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड हैं. एब्सोल्युटली. हमारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं. पल्स पोलियो में वी हैव वर्ल्ड रिकॉर्ड्स. हम जेनरिक ड्रग्स के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. करेक्ट. लेकिन क्या हम इसी पर खुश होते रहे? हमें आगे नहीं बढ़ना है क्या? यही इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है इनोवेशन. वेरी ट्रू. अब हमें जेनरिक से इनोवेशन की तरफ बढ़ना है. एब्सोल्युटली. हमने क्वांटिटी से क्वालिटी की तरफ बढ़ना है. करेक्ट. हमने फार्मेसी हब से फार्मा पावर हाउस बनना है. एक्सीलेंट. और इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, रेगुलेटरी पाथवेज हैं, जी, जो भी चीजें चाहिए, सपोर्ट सिस्टम है, वो गवर्नमेंट दे रही है. करेक्ट. करना हमने और आपने मिलकर के है. हमने और आपने में यहाँ मैं बिल्कुल साफ बता दूं, यहाँ हम अगर अलग अलग खड़े हो जाते हैं ना जी, तो शायद वो सपोर्ट सिस्टम नहीं बना पाते. एब्सोल्युटली. हम मतलब एकेडमिया, करेक्ट, इंडस्ट्री एंड रेगुलेटर. एब्सोल्युटली. अगर ये तीन पिलर खड़े हो जाएं जी, वैसे भी अगर वैदिक सिद्धांत मानते हैं तो हम त्रैतवाद का सिद्धांत मानते हैं. करेक्ट. करेक्ट. आत्मा, परमात्मा और प्रकृति. एब्सोल्युटली. तो एकेडमिया, इंडस्ट्री और रेगुलेटर अगर तीनों एक पेज पर हो, तीनों की थिंकिंग एक जैसी हो, करेक्ट, सस्टेनेबल गोल्स हो, गोल डिफाइंड हो, तो मुझे नहीं लगता कि क्यों नहीं हम अपने कंट्री में न्यू ड्रग इनोवेशंस के साथ वर्ल्ड में टॉप कर सकते. फिर वो जो एक सपना है ना जी, कि हम आर्थिक महाशक्ति बनेंगे, पांचवी है, तीसरी आएंगे, तीसरी है, उससे भी ऊपर जाएंगे, क्यों नहीं ले पाएंगे जी? बिल्कुल. Absolutely. These are the tiny steps which we are taking in form of international conference. Yeah. Very true, very true. Because by 2050, 2075, India is anyway going to be one of the top 3, economies in the world. Yes, the speed at which we are moving. We have to be. Correct, correct. उसके लिए अपने को सिर्फ सपने नहीं लेना जी, उन सपनों को सच करने के लिए मेहनत भी करनी. Absolutely, sir. हमारा एक बात छोटी सी एक लाइन में कहता हूँ जी, हमारा किस्मत, नियति, भाग्य, ये कोई पहले से लिखा हुआ नहीं रहता. करेक्ट. मैं एक ही बात कहा करता हूँ कि अपने परिश्रम, पुरुषार्थ, मेहनत को लेखनी बना करके मैं खुद अपनी किस्मत को लिखता हूँ. एक राष्ट्र के रूप में जब मेरे राष्ट्र के सभी निवासी, और फार्मा की बात करें तो फार्मा के सभी ग्रेजुएट, सभी स्टेक होल्डर्स जब इस मेहनत के साथ, इस लगन के साथ, इस पुरुषार्थ के साथ जी, उस पुरुषार्थ को लेखनी बना करके लिखेंगे, तो क्यों नहीं हम फार्मा पावर हाउस बन पाएंगे? क्यों नहीं हम दुनिया के सबसे बड़े इनोवेटर बन जाएंगे? क्यों नहीं हम क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी दे पाएंगे? Absolutely. Because anyway, sir, can you explain to us जो आजकल product patenting, process patenting, the transition that is happening. So where does India fit into this transition? देखिए, मैं यहाँ बड़ा स्पष्ट बताऊं जी, कि हम आज तक दुनिया के दबाव में नहीं आए जी सर. और आज जो ट्रम्प टैरिफ लगा 26% जी, और मुझे लगता है कि मेरे देश के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि उस ट्रम्प
टैरिफ को भी हम सस्टेन कर जाएंगे, उसके दबाव में नहीं आएंगे। कैसे? बताइए सर। ये मैं बतलाना चाहता हूँ। बताइए सर। सर हम जेनेरिक हैं, ठीक है। जेनेरिक मीन्स बायोसिमिलर। जी सर। जेनेरिक मीन्स किसी का इनोवेटिव प्रोडक्ट जो पेटेंट से बाहर आया, मैंने बनाना शुरू किया। जेनेरिक मीन्स जो हम पर एक आरोप लगता है कि हम तो कट कॉपी पेस्ट मास्टर हैं। लेकिन अभी जो मैंने रेगुलेटरी पाथवे बताया, एनडीसीटी रूल्स, न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019 की बात की, यहाँ एक लाइन और बतला दूं। बताइए सर। जब ये न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स बने ना, इंडिया ने एज अ कंट्री एक डिसीजन लिया कि हम बाकी चीजों की मार्केटिंग करते हैं, करेक्ट, हम अपने इस रेगुलेशन की भी मार्केटिंग करें। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। और एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और उसे डिफरेंट कंट्रीज में भेजा गया। जी। I was a member. Yes, so you have been a part of many such committees. Yes, I was member of that committee who visited United States of America. Wonderful. And then we tried to market our regulations. Correct. We told them that our NDCT rules are at par with the international regulations. Come, start clinical trials in our country. Excellent. We have the largest population base in the world. Absolutely. 144 करोड़ है। Correct. और 144 करोड़ हम बोझ नहीं मानते हैं इसको, हम इसको अपनी ताकत मानते हैं। Very true. और Very जिस दिन हम जेनेरिक से इनोवेटर पर शिफ्ट कर जाएंगे, तब मैं एक बात बताऊं, फिर हमारी दवाओं को लेने के लिए जो आज कह रहे हैं ना कि 26% टैरिफ लगाएंगे, तब वो लाइन लगा करके खड़े होंगे और हमें कहेंगे कि हमें अपनी ये इनोवेटिव ड्रग्स जो आपने अनुसंधान करके, रिसर्च करके, डेवलपमेंट करके निकाली हैं, जो इन बीमारियों के लिए हैं, ये हमें दीजिए। कोरोना के टाइम पर हमारे से पूरी दुनिया ने वैक्सीन मांगी ना। एब्सोल्युटली। क्यों मांगी? क्योंकि हम उसको बना पाए, अप्रूव कर पाए, सेफ्टी, एफिकेसी, क्वालिटी उसकी प्रूव कर पाए, तभी हम उनको देने की स्थिति में आए। एब्सोल्युटली। तो क्यों नहीं हम अब भी इसको करने में सक्षम हो पाएंगे? मुझे तो इसमें कोई शक नहीं है। मुझे अपने देश पर, अपने देशवासियों पर, अपने फार्मेसी प्रोफेशन पर बस जरूरत है सिर्फ एक किसी को टॉर्च बियरर बनकर के आगे आगे चलने की, और बाकियों को उनको फॉलो करने की, और एक गठजोड़ बनाने की, इंडस्ट्री, एकेडमिया एंड रेगुलेटर्स का। और जिस दिन ये बन जाएगा और हम एक पेज पर आ जाएंगे, हमारा एकेडमिया इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लगेगा, हमारा रेगुलेटर रेगुलेटरी हर्डल्स को क्लियर करने लगेगा, ना कि उसमें बाधा दौड़ बनाने के लिए हर्डल क्रिएट करेगा। लाल फीताशाही खत्म हो जाएगी, तब तय मान लेना कि हम फार्मेसी पावर हाउस ऑफ द वर्ल्ड बन जाएंगे। एक्सीलेंट सर। एंड वेयर डज आयुष फिट इनटू आवर फार्मा मिक्स? हाँ, बहुत बढ़िया पूछा आपने। बेसिकली हम एलोपैथिक में आएगा। जी सर। हमारा बेसिक पैथी था क्या? आयुर्वेद बोलते हैं जी। आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा एंड अदर्स। अब तो स्वैगारोपा एंड अदर्स, योगा आ रही है, योगा भी आ रहा है, नेचुरोपैथी आ रहा है, सब आ रहा है, और गवर्नमेंट इनको रिकॉग्नाइज कर रही है। करेक्ट। ठीक है। एलोपैथिक तब आया जब अंग्रेज हमारे देश में व्यापार करने के बहाने आकर के राजा बनकर के बैठे जी, और उन्होंने सिस्टम ऑफ मेडिकेशन, सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट चेंज किया, और मेरे देश में फिर आयुर्वेदा के स्थान पर एलोपैथिक लेकर के आए। क्यों लाए? क्योंकि वो चाहते थे कि जो उनके देश में दवाइयां बन रही हैं उनको मेरे देश में बेचा जाए। हालांकि मैं स्टेट ड्रग कंट्रोलर एलोपैथिक साइड का रहा, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, लेकिन जो मेरे देश की ओरिजिनल पैथी है, आपने उसके बारे में प्रश्न पूछा है, उसको मैं आंसर जरूर करूंगा। एब्सोल्युटली। मेरा एक मानना है, और मैं उसे 2-3 पंक्तियों में सिद्ध करता हूं, ध्यान से सुनना। सृष्टि के निर्माण के समय सृष्टि के निर्माता परम पिता परमेश्वर ने सृष्टि में रहने वाले समस्त प्राणियों के लिए एक आचार संहिता, एक नियमावली, एक संविधान दिया। करेक्ट। उस संविधान को हम अपौरुषीय ग्रंथ, ईश्वरीय वाणी, वेद के रूप में जानते और मानते हैं जी। उसी वेद में से एक अंग निकलता है, उसी वेद में से एक अमृत निकलता है जो मेरे स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए होता है, जिसे मैं आयुर्वेद कहता हूं। करेक्ट, करेक्ट। एक कहा जाता है ना, राइट टू लाइफ जी, फंडामेंटल आर्टिकल 21,
आर्टिकल 21। मैं एक बात कहता हूँ, मेरा ये जीने का संवैधानिक अधिकार ही मात्र नहीं है, मेरा जीने का और स्वस्थ जीवन जीने का ईश्वर प्रदत्त अधिकार है। करेक्ट। और मैं इसे 2 मिनट में सिद्ध करता हूँ जी। ईश्वर ने सृष्टि की रचना के समय हमें वेद दिया कि इसके अनुसार जीवन जीना है। उसी वेद में चिकित्सा प्रणाली के रूप में आयुर्वेद था। करेक्ट। आप ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट पढ़ेंगे, जब आयुर्वेदिक ड्रग्स की डेफिनेशन है सेक्शन 3A के अंदर, तो उसमें एक लिस्ट ऑफ बुक्स, ऑथोरिटेटिव बुक्स है, वो शेड्यूल 1 में एक्ट के साथ अपेंडेड है। ओके। और उसमें से अगर हम बुक्स की लिस्ट पढ़ते हैं तो पढ़ करके आपको हैरानी होती है, उसमें चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, और इतने पुराने वैदिक ज्ञान के वो ऋषियों के द्वारा दिए गए स्रोत हैं जो मुझे जीवन जीने की कला सिखाते हैं। एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट। तो आयुर्वेद तो सर वो है, ठीक है। अब आज की जरूरत है कि एलोपैथिक में, तो हमने तो एलोपैथिक में उनकी पैथी में उनको मात देते हुए हम फार्मेसी हब ऑफ द वर्ल्ड बन गए। एब्सोल्युटली। और अब हम फार्मा पावर हाउस ऑफ द वर्ल्ड बनेंगे। करेक्ट। लेकिन अगर वो आयुर्वेद मांगेंगे तो वो तो भाई मेरा मूल है। करेक्ट। मेरी जड़ है। True. मेरा देश का पूरा वट वृक्ष उसी से जुड़ा हुआ है। So that's a competitive advantage for us. Yes sir, yes. हमने तो उनकी पैथी उन्हीं को मार दी जी। Correct. Very true. So my last question to you today is, what are the latest developments of actions under the Drugs and Magic Remedies Objectionable Advertisements Act? That's a question you have asked. I was member of the committee. Yes. That's why I asked you this question. DMR, Drugs and Magic Remedies Objectionable Advertisement Act. Correct. No one should claim any long, tall, false claim about any drug. Correct. And the definition of drug in DMROA is much, much wider than the definition of drug under Drugs and Cosmetics. Yes. What exactly is the difference? And what is that which is in addition to that? Drug under DMROA, Drugs and Magic Remedies Objectionable Advertisement Act, that includes the definition of drug given in section 3A of Drugs and Cosmetics Act, which is for Ayurvedic Unani Siddha drugs. Correct. Number 1. Number 2, plus it includes definition of drugs given in section 3B, which is allopathic drugs. Not only 1, 2, 3, 4. True. That means it also includes medical devices. Correct. 3. Definition of drug in DMROA includes patent and proprietary Ayurvedic Unani Siddha drugs defined under section 3H1. Definition of drug in DMROA also includes patent and proprietary allopathic drugs defined under section 3H2. Not only that, it also includes the definition of homeopathic drugs given in the rules. True. Not only that, it also includes the magic remedies, which includes tantras, mantras, bhasam, kavach, even जो बाबा जी कहते हैं ना, मैं आशीर्वाद दूंगा पुत्रवती भव, या मैंने पानी फूंक मार के दे दिया कैंसर ठीक हो जाएगा, वो सब भी DMROA के अंदर आता है। करेक्ट। अब इसका झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ और आज कहाँ है, वो बतला करके बात को खत्म कर जी। इसका झगड़ा शुरू होता है DMROA का जो फर्स्ट विक्टिम बना, that was Coronil tablet. Correct. Coronil tablet was released by Patanjali in a big press conference, claiming that this will treat the corona. FDA came into action. True. And they issued a notice. You cannot do that. Where is the clinical trial? True. Where are the proofs? True. Then they changed the stand. Then they made that this is only for the boosting of immunity. This is an immunity booster, not for the treatment of corona. Then when they changed the claim and it becomes an immunity booster, instead of making claim that it is going to treat the corona, then it was allowed to be marketed. Correct. 1.
after that, all these firms came on the scanner. Then there was a tussle between Patanjali and IFA, and case went up to the Honorable Supreme Court. True. Then Supreme Court examined each and every aspect of this DMRO. Now Supreme Court is hearing this matter on monthly basis. True. And they are passing their directions. Correct. And the latest order passed by the Honorable Supreme Court just 1 week back is that they have directed the state governments to empower the machinery to act under the provisions of DMROA. Correct. And every law can be enforced if it has the teeth of punishment. Absolutely, absolutely. अगर उसमें कोई दंड देने का प्रावधान ही नहीं है तो मैं मानूंगा क्यों? जी. आपने देखा होगा कि ट्रैफिक वायलेशंस आर मोस्ट रैम्पेंट इन द कंट्री. True. कोई मानता ही नहीं था. रेड लाइट है तो है, क्या है, निकल जाएंगे, ज्यादा होगा 100 रुपए दे देंगे. जैसे उसकी पेनल्टीज इंक्रीज की अब कुछ लोग मानने लगे. True. कैमरास लगे, ऑनलाइन चलान आने लगे तो और ज्यादा लोग मानने लगे. Absolutely. चंडीगढ़ जाते हैं, हेलमेट लगाए रहते हैं, हाउसिंग बोर्ड की लाइट्स पार करते हैं, पंचकुला में एंटर करते हैं, सबसे पहले हेलमेट को उतारते हैं जैसे हेलमेट मेरी सेफ्टी के लिए नहीं है, शायद ऐसे ही धक्के से कानून ने रखवा दिया. तो डीएमआरओए एक्ट के अंदर भी पेनल्टीज को इंक्रीज करने के लिए भी डायरेक्शन अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दी और अधिक अधिकारियों को इसमें नोटिफाई करते हुए डीएमआरओए एक्ट के अंदर कार्रवाई करने की एक डायरेक्शन दी और की हुई कार्रवाइयों को हर महीने एफिडेविट के फॉर्म में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को सबमिट करने की दी. 3 स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरीज को खींचा कि आपके यहाँ इसमें कार्रवाई नहीं हुई, अब वहां भी कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं. मैं नाम नहीं लूंगा स्टेट्स का, लेकिन ये सभी जो रेगुलर मॉनिटरिंग बाय द अपेक्स कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरंतर जो निगरानी रखी जा रही है, तो अब इसमें डीएमआरओ एक्ट के अंदर भी बहुत सी कार्रवाइयां होनी शुरू हो गई हैं. और यहाँ एक बात और बताऊं, एक शेड्यूल है डीएमआरओ एक्ट के, वही शेड्यूल जे के अंदर रेड विद रूल 106 ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंदर भी है, जो ये कहता है कि नो ड्रग कैन क्लेम और परपोर्ट टू क्लेम द ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ फॉलोइंग डिजीजेस, एलिमेंट्स और डिसऑर्डर्स. उसमें वो लिस्ट ऑफ डिजीज दिया हुआ है, उसका कोई भी क्लेम नहीं कर सकता कि मैं इसकी चिकित्सा कर सकता हूँ. तो ये सब है, अगर ये सब इंप्लीमेंट हो जाएगा इंटरव्यू लेटर एंड सेपरेट, तो डेफिनेटली कोई झूठ बोल करके, केवल झूठ बोल करके दवाई बेच के चला जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं. करेक्ट. थैंक यू सो मच प्रोफेसर आहूजा for joining us on the podcast. It was an enlightening conversation, and you stay tuned for our future podcasts where we'll get leaders and thought leaders from academia, from the industry and the corporate world. Bye-bye. Thank you very much for giving me a chance to interact for the listeners. Thank you, sir. Thank you for coming. Thank you. Bye.